Alaikum. A very good morning to all of you. Okay, students, hope all of you are doing well. Welcome to the new classes. This is me, Ma'am Shaista. Welcome to TKS online classes. Okay, first listen to the words of the day. Good words of the day. Do not afraid of growing slowly. Be afraid only of standing still. It means that we should try. We should slow and steady can win the race. This quote means this. Okay. All of you must have your English books. That is, let me show you the cover page of your English book. That is English grade 8. A textbook of Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar. All of you must have this one book. Clear? Okay. Now take out your book and open your page. Okay. There are total 10 chapters, but we will start from the very first chapter, that is the Holy Prophet's Justice. Clear? Okay. Before starting our lecture, let me tell you about this unit. That what is this unit all about and what are the main points of this unit. Okay. First one is the chapter name is the Holy Prophet's Justice. This is page number 1. This chapter starts from the page number 1 to page number 4. Okay, listen guys, all of you must keep your mic off. लेकिन किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, you can ask in the comment section. लेकिन अगर वीडियो ब्लर आ रही है, जो भी प्रॉब्लम है, you can ask from me in the comment section. Okay. Let me tell you about the theme of this unit: respect for rules and laws. Whatever Islam teaches us, we should follow that all rules and laws. All of you must know the rules are for the short time period, but laws are for the long term time period. ये हमारे हुज़ूर सल्लम ने जो हमें बातें सिखाई हुई थी, we have to follow that all rules and laws. Clear? Okay. What is the main idea of this unit? But if you have any problem, then you can ask. अगर कोई भी वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है, what is mean by screen shiny? If the picture is blur, you can tell me. Okay. Main idea of this chapter is adopt the virtue. What is mean by this word? That we should differentiate between the right and wrong. We should adopt the right things and we should neglect the negative things. Clear? Okay. Second one is peace. We should bring a very peaceful environment in the society. Clear? Okay. Next one is harmony. Harmony means a very pleasant environment. We should create a very pleasant environment for the people, where people live and where people can spend their life. Clear? Okay. Next one is equality. We should treat each and every person in the society equal. हमें किसी को ऊपर छोटा या बड़ा नहीं कंसिडर करना चाहिए. We should treat everyone equal in the society. Clear? These are the inborn qualities of our holy prophet. ये जो सारी बातें ऊपर बताई गई है main ideas में, these are all the inborn qualities of our holy prophet. Clear? Okay. Before prophethood and after prophethood, हुज़ूर सल्लम जब मतलब उसको जब पैगंबरियत दी गई थी, उससे पहले और उसके बाद के मतलब कैसा क्या डिफरेंस था और उसने क्या क्या किया हुआ था. ओके. Let me tell you about the after prophethood.
आई विल टेल यू इन उर्दू। एक वाक़या था, हुज़ूर सल्लम के पास एक औरत आई थी, उसने कहा था मैंने कोई चोरी की हुई है और लोगों ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया हुआ है, लेकिन मेरे लिए सज़ा क्या मुकर्रर की गई है कि लोग मेरे हाथ काटेंगे, मतलब मेरे हाथ वो मतलब कट करेंगे। हुज़ूर सल्लम ने कहा कि मैं इसमें आपको कोई सिफारिश नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये काम मेरी बेटी ने भी किया होता तो मैं क्या करता, मैं उसको यही सज़ा देता। डेट इज़ आफ्टर प्रॉफिटहुड, वो हर किसी के साथ क्या करते थे, इक्वल सलूक करते थे। क्लियर? ओके। बिफोर क्या था, उसने ये बोला हुआ था कि मतलब जो इस तरह के लोग थे जो इनजस्टिस करते थे या किसी के साथ नाइंसाफ़ी करते थे, वो ऐसे ग्रुप का हिस्सा ही नहीं बनते थे जहाँ पे लोगों के साथ नाइंसाफ़ियाँ होती थी। क्लियर? व्हाट इज़ द फर्स्ट पॉइंट? अडॉप्ट द वर्च्यू, पीस, हारमोनी, इक्वलिटी। बच्चे, ऑल ऑफ यू मस्ट राइट दीज वर्ड्स। मैं किसी का भी माइक किसी भी टाइम अनम्यूट कर सकती हूँ, मैं किसी से भी क्वेश्चन कर सकती हूँ। सो बी वेरी केयरफुल एंड बी वेरी एक्टिव। बच्चे, यू कैन चेक योर इंटरनेट कनेक्शन, मेरे पास बिल्कुल क्लियर है, मैंने यहाँ पे लोगों के साथ देखा हुआ है। ओके, नाउ ओपन योर बुक्स। इट इज फ्रॉम पेज नंबर 2. But before going towards this page, let me tell you about the summary of this unit. Date. What is the summary of this unit and what we will study in this unit? Clear? Okay. All of you be attentive and all of you must clear. अच्छी, माई स्क्रीन इज़ क्लियर, मेरा इंटरनेट कनेक्शन बिल्कुल ठीक है। आई डोंट नो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। आप अपना इंटरनेट कनेक्शन प्लीज़ चेक कर लें या दोबारा साइन इन और साइन आउट हो जाए। जूम को एक दफ़ा डिसकनेक्ट करें फिर दोबारा कनेक्ट करें, देयर इज़ एनी प्रॉब्लम। ओके, फर्स्ट लेट मी टेल यू अबाउट द समरी ऑफ दिस यूनिट। मैं कल से सबसे सुनूंगी, आई कैन अनम्यूट एनी वन कॉल। This unit highlights one of the greatest characteristics of our noblest Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that is justice. तो सल्लम ने फर्स्ट प्योरिटी पे क्या रखा था, इक्वलिटी। सेकंड पे क्या रखा था, जस्टिस। Okay, not only our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam gave importance to this aspect of society, but Quran also stresses to adopt this feature. हमारे हुज़ूर सल्लम ने सिर्फ इस बात पे ज़्यादा फोकस नहीं किया था, लेकिन कुरान ने भी इस बात की बहुत ज़्यादा हिदायत दी थी कि वी शुड फॉलो दिस टर्म। क्लियर? ओके। जस्टिस ब्रिंग्स पीस एंड हार्मनी अमंग द पीपल, so that was the reason that our holy Prophet sallallahu alaihi wasallam even gave it priority in the pre-Islamic time. जस्टिस हुज़ूर सल्लम के एक फर्स्ट वो था कि मतलब उसको पहले उसको प्रायोरिटी पे रखते थे, इसलिए इस्लाम से पहले हुज़ूर सल्लम ने एक वो बताया हुआ था। इस्लाम से पहले उसने एक सोसाइटी बनाई हुई थी, डेट इज़ कॉल्ड हल्फुल फुदूल, और उसमें क्या करते थे, एक कम्युनिटी थी जिसमें लोगों को वो इंसाफ दिलाने की क्या करते थे, कोशिश करते थे। क्लियर? ओके, नो टेक इट टू योर पेजेस। मैं सबके कमेंट्स पढ़ी हूँ, आई विल सी यू ऑल। ओके, रीडिंग। इफ एनीवन इज नॉट इंटरेस्टेड बच्चे, तो आपको इंटरेस्ट डेवलप करना है। टेक आउट योर बुक, पेज नंबर 2। डेट इज इन ग्लोरियस कुरान, Allah commands believers, O believers, stand firm for justice as witness for Allah, even if it is against yourself, your parents or close relative, be they rich or poor, Allah is best to ensure their interest. कुरान में क्या बताएगी, ये सूरह निसा का एक वर्स है, उसमें क्या बताएगी कि हमें इंसाफ करना चाहिए। डेट इज अगेंस्ट आवर सेल्फ, आवर फैमिली, आवर रिलेटिव, बट वी शुड कंसिडर जस्टिस इन द सोसाइटी। हमें सोसाइटी में जस्टिस ही कंसिडर करना है, हमें इसी पे ही अमल करना है। डू नॉट लेट योर डिज़ायर्स कॉज यू टू डिविएट फ्रॉम जस्टिस। आपके इंटरेस्ट, आपके ज़ाती मफाद इतने ज़्यादा ना हो कि यू कैन डिविएट फ्रॉम द वे ऑफ इस्लाम। क्लियर? इफ़ यू डिस्टॉर्ट द टेस्टमनी और रिफ्यूज टू गिव इट, then know that Allah is
सर्टनली ऑल अवेयर ऑफ व्हाट यू डू। अगर आप अपना मुंह पैरोगे, अपनी ज़बान दबाओगे, किसी के सामने बोलोगे नहीं, इंसाफ की बात नहीं करोगे, तो अल्लाह ताला सब कुछ जानते हैं। वो क्या करेगा आप लोगों के साथ? फिर वो जिस तरह हम लोग कहते हैं ना अल्लाह ताला सब हिसाब किताब रखते हैं, वो क़यामत के दिन ही उसका हिसाब किताब लेंगे। तो अल्लाह ताला को सब चीज़ों का पता है, अल्लाह ताला सब चीज़ों का इल्म है। तो वी हैव टू ऑलवेज फोकस एट दिस टर्म जस्टिस। ओके, दिस ऑल आर द वर्सेस ऑफ सूरे निसा। क्लियर? तो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एबेडेड मीन्स पासदारी। आई विल टेल यू अबाउट द मीनिंग्स। मैं सबको लिखवाऊंगी, बट मैं कल सबसे पूछूंगी भी। बाई अल्लाह कमांड्स इवन बिफोर वी हैव इंटरेस्टेड विद द ड्यूटी ऑफ अपोस्टलशिप। अपोस्टलशिप मतलब पैगंबरियत की जो ड्यूटी है वो देने से पहले हुज़ूर सल्लम क्या करते थे? जस्टिस वॉज इंस्टेल्ड मतलब जिस तरह हम लोग मोबाइल में कोई चीज़ इंस्टॉल करते, तो ये भी एक क्वालिटी थी जो हुज़ूर सल्लम में बचपन से ही डाली गई थी। इन हिम एज अ न्यूक्लियस एज अ रिजल्ट ऑफ डिवाइन ट्रेनिंग। ओके, फ्रॉम द टाइम ऑफ हिज चाइल्डहुड द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिमेन आउटसाइड द मॉरल डीजनरेशन। मॉरल डीजनरेशन मतलब अखलाकी पस्ती से। जिस तरह लोग एक दूसरे को डिग्रेड नहीं करते, इस तरह उससे वो दूर रहते थे कि लोगों की बातों से दूर रहते थे। ऐसा ना हो कि लोग हमारे दिमाग में कोई ऐसी बात डाल दें कि मतलब वो इस्लाम से अगेंस्ट हो या जस्टिस से अगेंस्ट हो, तो वो हमेशा ऐसी बातों से क्या करते थे? दूर रहते थे। ऑफ द सोसाइटी ही अपोज्ड ऑपरेशन एंड इनजस्टिस इन द यूथ। अपोज्ड ऑपरेशन मतलब जुल्म और ज़्यादती के क्या थे? खिलाफ थे। एंड ही जॉइन द पैट ऑफ सोशल जस्टिस हल्फुल फदूल। जिस तरह मैंने जिक्र किया हुआ था, दिस इज़ अ सोसाइटी। हल्फुल फदूल, हल्फुल मीन ओथ को कहते हैं। जिस तरह एक ओथ नहीं उठाई, हल्फ नहीं उठाई जाती, कसम, उसको कहते हैं। एक सोसाइटी बनाई गई थी एसोसिएशन विच आर फॉर्म फॉर फेयर कमर्शियल डीलिंग इन प्री इस्लामिक मक्का। फेयर कमर्शियल जो हमारे पास जो ट्रेडिंग होती है, कमर्शियल ट्रेडिंग होती है, तिजारत होती है, वो इतने शफाफ तरीके से हो कि उसमें कोई नाइंसाफ़ी ना हो, किसी के साथ कोई जुल्म ज़्यादती ना हो। तो उसके लिए उसने बनाई हुई थी कि मतलब अगर लोग उसको फॉलो भी कर ले तो क्या हो कि वो बिल्कुल फेयर हो, किसी के साथ ज़्यादती ना हो, किसी के साथ इनजस्टिस ना हो। क्लियर? हेल्पफुल, यहाँ पे यू कैन करेक्ट दिस स्पेलिंग। लिसन, अगर आप लोगों को कैमरे में नज़र आ रहे, HULFUL है, F नहीं है, L मीन्स ओथ, वेयर इज फदूल मीन्स पीपल विथ virtue। Virtue मीन्स to differentiate between right and wrong. We should neglect the negativity, we should adopt the right things. Clear? Okay, now let me tell you about the difficult words of this chapter. All of you must hold your pencil, or all of you must write these meanings. मैंने उर्दू में भी लिखी है, मैंने इंग्लिश में भी लिखी है, तो all of you must write these meanings. Commands means order. Commands means order. All of you must write these meanings. I will ask why tomorrow. इसका उर्दू मीनिंग क्या है? हुक्म मानना. Second one is believers. English meaning is followers. Follower or followers. Okay. उर्दू meaning is ईमान वालो. Second is distort. Mean twist. बिगाड़ करना, सब चीज़ें इधर उधर करना, बिगाड़ना. Abetted means to obey. Clear? Obey means हुक्म मानना. Clear? Okay. Interested means charge, सुपर्द करना. Oppression means abuse, जुल्म करना. कमर्शियल मीन्स ट्रेड, तिजारती. डीलिंग मीन्स कंडक्ट, लेन देन. ओथ मीन प्रॉमिस, कसम. वर्च्यू मीन्स ऑनर भी कहते हैं, एंड यू पीपल कैन राइट ऑनर. इसका दूसरा भी टू ड्यू द शाइस्ता, आप उनको बोलो कि here it is clear, kindly check your internet connection.
बच्चे मेरे पास क्लियर है? प्लीज यू पीपल चेक योर इंटरनेट कनेक्शन इफ देयर इज स्टिल एनी प्रॉब्लम. To do the right things. And you people can also write, अगर आप लोग इसके साथ कोई एक्स्ट्रा लिखना चाहते, send me the pics. Which one? Okay. Please mention your name. Right thing means to neglect the. You can take the screenshot. Clear? Okay. What we studied in this unit, हमने आज क्या क्या पढ़ा है इस यूनिट में. All of you must attentive. मैं क्योंकि मैंने सारी समरी बताई हुई, I will ask from about this from by tomorrow. Okay. What is the name of this unit? The Holy Prophet Justice. What is the theme of this unit? Respect for rules and laws. What is the main idea of this unit? Adopt the virtue, peace, harmony and equality. What is mean by adopt the virtue? जिस तरह मैंने लिखवाया भी है, you people can also listen it again. To do the right thing and to neglect the negativity. Neglect मतलब नज़रअंदाज करना, उसको reject करना, refuse करना. What is mean by peace? To develop a very peaceful environment जहाँ पे सबको अपनी राय देने का हक मिले. नेक्स्ट वर्ड इज हार्मनी. मीन्स टू क्रिएट अ वेरी प्लेजेंट इन्वायरमेंट जहाँ पे लोग अपने राय का इजहार कर सके, जहाँ पे लोग अच्छी ज़िंदगी बसर कर सके. नेक्स्ट वर्ड इज इक्वलिटी. वी शुड ट्रीट ईच एंड एवरी पर्सन इक्वल इन द सोसाइटी. क्लियर? ये सारी किसकी इनबॉर्न क्वालिटीज़ है? दीज ऑल इनबॉर्न क्वालिटीज़ ऑफ आवर होली प्रॉफिट. वो बचपन से ही यही करते थे कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करते थे. एक बहुत पीसफुल और प्लेजेंट इन्वायरमेंट उसने लोगों के लिए डेवलप किया हुआ था. मैंने जिस तरह किस्सा बताया बिफोर प्रॉफिटहुड एंड आफ्टर प्रॉफिटहुड के, वो मतलब जिस तरह पैगंबरियत उसको दी गई तो उससे पहले उसने क्या किया, तो उसके बाद उसने क्या किया हुआ था. क्लियर? If there is again any problem बच्चे you can ask in the comment section. अगर आप लोगों को किसी वर्ड की मीनिंग समझ नहीं है, अगर आपने बुक में वो वर्ड देखा हुआ है मैंने मीनिंग नहीं बताई हुई, people can ask. Okay, listen to this summary. कल आप लोग से मैं इसकी समरी सुनूंगी. अगर कोई अपने साथ बुलेट्स में लिखना चाहता है, people can write it at the top of your book, so it's okay. This unit highlights one of the greatest characteristics of our noblest prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that is justice. Not only our beloved prophet sallallahu alaihi wasallam gave importance to this aspect of society, but Quran also stresses upon adopting this feature. Justice brings peace and harmony amongst the people, and that reason that our prophet sallallahu alaihi wasallam gave it priority. ये क्या करते थे? हुज़ूर सल्लम इस बात को ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे जहाँ पे कुरान ने भी इस बात पे ज़्यादा फोकस किया हुआ है. और हुज़ूर सल्लम ने इस बात को तो मतलब वो किया, फोर्स किया हुआ है कि मुसलमान इस बात को ज़्यादा अडॉप्ट कर ले. बट कुरान ऑल्सो स्ट्रेसेस ऑन दिस एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी. जिस तरह मैंने बताया था कि एक सोसाइटी बनी हुई थी विच इज़ कॉल्ड हल्फुल फुदूल. हुजूर सल्लम. बच्चे वी आर टॉकिंग अबाउट आवर होली प्रॉफिट. ये क्या बात हुई? द टॉपिक इज मेंशन एज आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, द होली प्रॉफिट हुजूर सल्लम, पैगंबर. सी बाय टुमारो के क्या होता है. जिस तरह इस्लाम से पहले एक सोसाइटी उसने बनाई हुई थी विच इज़ कॉल्ड हल्फुल फदूल. उसमें क्या था? हल्फुल मीन्स और फदूल मीन्स के लोगों की जो ट्रेडिंग होती है बहुत ज़्यादा फेयर एंड क्लियर हो, जिसमें किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, सब लोग इसमें आसानी से क्या कर सके? ट्रेडिंग कर सके. क्लियर?
ओके बच्चे, इफ देयर इज स्टिल एनी क्वेश्चन यू पीपल कैन आस्क, लेकिन कल मैं आप सबसे क्वेश्चंस करूंगी. यू पीपल मस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ. मैं किसी का माइक भी किसी भी टाइम अनम्यूट कर सकती हूँ. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.